Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. This is for the second time when I will try my hands out with a motivational premise. I would emphasize on the topic that how to optimize your abilities with positivity. So let's start. First of all, the foremost thing which we have to do is we have to inhale positivity and exhale negativity. Surround yourself, surround your life with positive people. हमें अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव पीपल से सराउंडेड रखना चाहिए. अवॉइड नेगेटिव पीपल. नेगेटिव पीपल will always pull you down. If you would be surrounded by negative people, then you won't be able to succeed. तो अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव लोगों से ही सराउंडेड रहें. नेगेटिव पीपल से नेगेटिव वाइब्स आएगी हमें. दे विल डिस्करेज अस, दे विल डीमोटिवेट अस. वो हमें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे. अगर हमें कुछ अच्छाइयाँ भी होगी तो वो हमें खामी निकालेंगे. इससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. फर्स्ट थिंग, इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल नेगेटिविटी. हाउ इट वुड बी अचीव्ड? पहले कि सराउंड योर लाइफ विथ पॉजिटिविटी ऑल अराउंड. हमेशा पॉजिटिव पीपल के साथ रहो बिकॉज दे विल रिफ्लेक्ट पॉजिटिव वाइब्स. मतलब ऑल ऑफ अस गेट एन इंट्यूशन कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है. मतलब वी हैव दैट सुपर पावर, दैट इज एन इनबिल्ट सुपर पावर. वी गेट एन इंट्यूशन, गेट हु आर पॉजिटिव एंड हु आर नेगेटिव. ये समझ में आ जाता है हमें. द सेकेंड थिंग इज दैट फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ. Focus on your self growth. Do not bother about others. कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है. You should not think on that. Because कि normal time में भी क्या होता है कि suppose if we are given an assignment, like suppose you're given a task, what we do is we focus कि मेरे बैचमेट ने कितना किया है, मेरे फ्रेंड्स ने कितना किया है, उसने इतना कर लिया. और what happens कि we get frustrated. हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं. तो we should focus on our personal growth. हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, that's none of our business. क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा. उससे जो हमारा पोटेंशियल है वो डिविएट हो जाएगा. we won't be able to achieve anything. if you want to achieve the best thing, if you want to achieve the best result ultimately, then you should focus on your personal growth. अपने बारे में बस सोचो that what you are doing is the best. Rely on yourself. Have faith in yourself. Do not think कि I won't be able to do this, I won't be able to do this. Accept failure. If you are failing in something, if you fail to achieve any particular thing which you are trying, accept it. Accept your flaws. If anybody is criticizing you that you need to improve one thing, accept that and try to improve on that particular thing. Do not think it the other way. Boost up your confidence. Confidence is something which needs to be boosted up. It could only be boosted up through practice. As it is well said that practice makes a man perfect. If you would practice more and more, your confidence would ultimately be boosted up. Work on the things. If you think that you're not good at a particular thing, work on those things. Then ultimately you'll have perfection. Nobody's perfect in this world. So all we need to do is we need to accept our strengths and accept our flaws as well. कोई भी perfect हो ही नहीं सकता है. अगर कोई perfect होता तो that person would have been an angel. तो हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं. हमें उस खामियां को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. और हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है. ना कि कौन क्या कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, वो जल्दी सेटल हो गया. और इससे क्या होता है, यू गेट डिप्रेस्ड. यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि तुमको और क्या करना चाहिए, तुमको कैसे अपना बेस्ट देना चाहिए. क्योंकि माइंड तो हमेशा नेगेटिविटी से सराउंडेड है. और यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं. यू पैनिक योर सेल्फ, मतलब अपने आप को बर्डन दे रहे हो. बर्डन तो इस चीज़ का है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. और
सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करना. हर इंसान में फ्लॉज होता है. देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसमें फ्लॉज नहीं होता है, जिसमें वीकनेस नहीं होता है. द थिंग दैट मैटर्स इज दैट कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, हाउ यू यूटिलाइज दैट थिंग, और उसको आप कैसे एक्सेप्ट करके उससे भी बेस्ट पॉसिबल थिंग आप निकालते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आपने ये कर लिया, फिर नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना. कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. ये कैसे होगा? यू नीड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ. खुद पे रिलाई करना. येस, आई कुड डू दिस थिंग. देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग विच आई कुड नॉट डू. इफ आई वुड वर्क हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड करूँगी, अगर मैं लेबर करूँगी उस पर्टिकुलर चीज़ पे, देन आई वुड अचीव. Ultimately, I'm going to achieve that thing. Accept failure. If you're failing for the first time, if you're not able to achieve your goal for the first time, accept it. Do not feel otherwise. Let it be. And the next thing is that focus on your mental well-being. Mental well-being is like mental exercise is very necessary. Whenever you get up in the morning, try to meditate. Meditation is like, think about yourself, that why the Almighty has sent you in this universe. What's the reason? What are your weaknesses? What are your strengths? Accept it and think that how could you utilize it in the best possible way. क्या तुम्हारी खामियां हैं, क्या तुम्हारी अच्छाइयां हैं, और तुम उसे कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हो. उस पर वर्क ऑन करना स्टार्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो. डीप इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी नेसेसरी कि I have this, what I need to do. और खुद को हमेशा मोटिवेट करो. Always motivate yourself. Always be with yourself. Always try to support yourself. If अगर कभी भी कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है किसी और से, मतलब अल्टीमेटली ऐसा होता है, मतलब इंसान कितना भी पॉजिटिव हो, कभी ना कभी ऐसा होता है कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है. उसको लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ. सपोर्ट योरसेल्फ. खुद की काउंसलिंग करो. खुद के बारे में सोचो. नो, आई कुड डू दिस. इफ आई एम नॉट एबल टू डू दिस, देन मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मैं ये भी कर सकती हूँ. लाइक सपोज कि अगर पहले बार आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डू नॉट टेक अ स्टेप बैक. आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल दैट I'm running this YouTube channel since August and I have very less subscribers. I have just 370 subscribers, which is very less. So people ask me, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, तुम वीडियो अच्छा बना रही हो, ठीक बना रही हो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं. और मैं मतलब आई एम वर्किंग ऑन इट. मतलब मैं वर्क हार्ड कर रही हूँ, उस पर हमेशा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा. तो मैं भी डीमोटिवेट हो सकती हूँ उस चीज़ से, और मैं एक स्टेप बैक ले करके अपना ये चैनल बंद कर सकती हूँ, कुछ अपलोड ना करूँ, मतलब ओवर करूँ इस चीज़ को. बट आई एम नॉट डूइंग दैट. मतलब माई अल्टीमेट गोल इज नॉट टू जस्ट गेन सब्सक्राइबर्स. इट्स माई पैशन. आई एम वर्किंग फॉर दैट. एक ना एक दिन इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. आई हैव अ बिलीव. सो दैट डजेंट मैटर कि अगर मुझे रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, बट आई विल वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. ये मेरा सब्सक्राइबर वाला थिंग इज द लाइव एग्जाम्पल. अगर कुछ भी, इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, इफ यू हैव अ पैशन ऑफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, इवन इफ यू आर नॉट गेनिंग द रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, वर्क ऑन दैट थिंग. मतलब अपना बेस्ट दो, ऑप्टिमल लेवल से फुल जील के साथ वर्क ऑन दैट थिंग. एक ना एक दिन इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. एक ना एक दिन इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. जिस थिंग की कुछ कमी होगी, कुछ फ्लॉज होंगे, तभी वो उतना वर्क नहीं कर रहा, मैं उस लेवल से नहीं कर पा रही हूँ, उस पर वर्क करो और ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी पासिंग डे. मतलब हमेशा कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज अभी जो मैं आज हूँ, कल मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मुझे उस पर वर्क करने की ज़रूरत है. मतलब सबसे पहले अपना मेंटल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी नेसेसरी. मतलब आप कितने भी टैलेंटेड हो, यू माइट हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, बट यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे if you do not focus on your mental strength, on your mental well-being. Because ऐसा होता है कि like suppose I'm good at a thing, I'm good at one thing,
तो मैं हमेशा चाह रही हूँ कि मैं उसमें भी अच्छी हूँ, उसमें भी अच्छी हूँ, उसमें भी, ऐसा हो नहीं सकता. दैट्स नॉट पॉसिबल. और अगर मैं डिप्रेस्ड हो जा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, अगर मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो मेरी जिसमें चीज़ अच्छी है, जो चीज़ मेरे में अच्छी है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन दैट थिंग ओनली. इसीलिए ज़रूरत है कि अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट योर फ्लॉज. और उस पर अगर नहीं कुछ हो सकता, इफ यू आर नॉट गुड एट दैट थिंग, तो डू नॉट स्पॉइल द थिंग विच यू आर गुड एट इट. मतलब कि अगर आप लाइक सपोज I cannot sing, I cannot act, I could not do these stuffs. अगर मैं ये सोचूं मैं ये नहीं कर पा रही हूँ और सारे लोग कर रहे हैं, और मैं इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दूं, और मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं करने के बाद भी, आई एम नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, और मेरे अंदर जो टैलेंट है उस पर भी मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी, दैट वुड बी डिस्ट्रॉयड, दैट वुड बी स्पॉइल्ड. सो मतलब एक्सेप्ट एवरीथिंग. मतलब जो चीज़ है, वट एवर थिंग यू आर ब्लेस्ड विथ, जिस चीज से यू आर ब्लेस्ड विथ, एक्सेप्ट दैट एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट थिंग. Stand up in front of the mirror, as I've earlier said. Think about yourself. Accept your flaws, accept your strength. और अपने बारे में सोचो और think that, मतलब बहुत बार ऐसा होगा that people would criticize you, people would pull you down. So accept that. Be with yourself. Support yourself. If you won't support yourself, nobody would be there for you. तो अगर आप कुछ कर रहे हो, if you are doing something new, if you are doing something innovative, people would be there to pull you down. So be ready for that. इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ को इतना एनहांस करने की हमें ज़रूरत है कि हर चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़े. मतलब क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन, अगर कोई हमें अप्रिशिएट भी कर रहा है तो यू नेवर नो कि दैट इज पॉजिटिव अप्रिसिएशन और नेगेटिव अप्रिसिएशन. ऑल द अप्रिसिएशन आर नॉट गुड. मतलब सारे अप्रिसिएशन पॉजिटिव नहीं होते हैं. तो उस पर हमें ऐसा नहीं कि किसी ने हमें अप्रिशिएट कर दिया, देन आप बहुत खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि आपको ये नहीं लग रहा है कि यू नीड टू इम्प्रूव ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग. मतलब हमेशा वी नीड टू बी न्यूट्रल. ना अपने अप्रिसिएशन से बहुत खुश होना है, ना क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी होना है. मतलब वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ. लेट द पीपल से एनीथिंग, लेट द पीपल बैक. अगर कोई आपके भलाई के लिए कह रहा है, if someone is saying something for your betterment, then focus on that. अगर कुछ ऐसा मतलब लग रहा है कि आपको नीचा दिखाने के लिए कहा जा रहा है, then let it be. Do not let yourself be affected. Do not let yourself be affected, I repeat. Because you need to be with yourself in all ups and downs. Thank you. I hope you would apply this on your real life also. Do not forget to subscribe my channel. Hope you like this video.